السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام لطف علی ہے اور جی میں اس وقت کراچی میں ہوتا ہوں. میں بیسیکلی بایو اکیڈمیشن اینتھروپولوجسٹ ہوں. قائد یونیورسٹی اسلام آباد سے پڑھا ہوں اور میرا سبجیکٹ جو ہے وہ پچھلے کافی سالوں سے میں کام کر رہا ہوں حر تحریک کے اوپر. اور میرے ساتھ سامنے ڈاکٹر رزاق ہیں. ڈاکٹر رزاق بھی اینتھروپولوجسٹ ہیں. انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے آسٹریلین یونیورسٹی سے. ابھی پوسٹ ڈاک کیا ہے ہارورڈ سے. اور ان کے ساتھ رفیق وسان ہیں. رفیق وسان بھی اینتھروپولوجسٹ ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا ہے برن یونیورسٹی سوئٹزرلینڈ سے. سو ماشاء ہمارا اللہ. جو تھینک یو سر، تھینک یو. ہمارا جو سر پرائمری مقصد تھا آپ کو زحمت دینے کا آج وہ یہ تھا کہ ہم نے پچھلے کافی سالوں سے ایک تھوڑا سا کام شروع کیا ہے. ایک اسٹڈی سرکل بنایا ہے، سوریہ بادشاہ اسٹڈی سرکل. سوریہ بادشاہ جی از جی اے ٹائٹل آف پی سبت اللہ شاہ جنہوں نے لڑا تھا جی انگریزوں جی کے خلاف. سو اس نام سے ہم نے اسٹڈی سرکل بنایا تھا. ہمارا پرپز یہ تھا کہ ہم اس تحریک کو تھوڑا سا مین اسٹریم میں لے آئیں، اس مین اسٹریم ڈسکورس میں لے آئیں. سو کافی سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں تھوڑا بہت اپنے حصے کا اپنے پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ. سو جی آج جی آپ کو زحمت دینے کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھ سکیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو اس موومنٹ کا کس طرح دیکھا جا رہا ہے، کس طرح دیکھا گیا ہے. سو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آج زحمت دی. سو میں رفیق وسان صاحب کو ریکویسٹ کروں گا وہ کوشچن آپ سے شروع کریں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. چلے نہیں، بڑی خوشی ہوئی. پہلے تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ آپ نے جمع کر دیے، بہت خوشی کی بات ہے. کیونکہ ہمارے ہاں مطلب کہ ریسرچرس کی بڑی کمی ہے. آپ لوگ نہ صرف یہ کہ حر تحریک پہ بلکہ آگے چل کے سندھ کی تاریخ کے اوپر بھی کام کریں، چونکہ بہت کام کرنا باقی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ جمع ہوئے ہیں اور کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. بہت جی شکریہ. جی میں شروع کروں لطف صاحب؟ جی 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 پلیز. جی ڈاکٹر صاحب، میرا نام رفیق ہے، جس طرح لطف بھائی نے تعارف کروایا میرا. جی تو جس طرح آج کے سیمینار کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی شاید آپ کو شیئر کیا گیا ہوگا. تو اس بار اس سال جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ بیسیکلی ہے ڈی کلونیل ہسٹری اینڈ ہیریٹیج کے حوالے سے. جی جی تو ہم اصل میں میرے خیال سے جنرل جو انٹروڈکٹری کوشچن ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ آپ پاکستان کے اور ساؤتھ ایشیا کے ایک بہت بڑے نامور ہسٹورین ہیں. تو ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں سر کہ پاکستان میں، یعنی خاص کر پوسٹ انڈیپینڈنس یا پوسٹ کلونیل پاکستان میں جو ہسٹری اور ہیریٹیج ہے، خاص کر ہمارے جو انڈیجنس موومنٹس کے حوالے سے، ان ریلیشن جی ٹو انڈیجنس موومنٹ جس میں ہم حر تحریک کا ذکر کر رہے ہیں. تو پوسٹ کلونیل پاکستان میں جو ہسٹری اور ڈی کلونیل ہسٹری اور ہیریٹیج کا جو کوشچن ہے، اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اور خصوصاً جو انڈیجنس موومنٹس ہیں تو ان کو کیوں اس میں اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا؟ تو ڈی کلونیل ہسٹری اینڈ ہیریٹیج ان پوسٹ کلونیل پاکستان کا کوشچن. جی جی نہیں، آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، جی پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ ہماری جو ہے نا، اس میں کلونیلزم کو ایک طرح سے تنقیدی طور پہ دیکھا ہی نہیں گیا ہے، اور نہ ہی اس پہ پاکستان کے اندر کوئی کام ہوا ہے. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا پورا کارنامہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ہندوؤں سے مقابلہ کر کے لیا ہے، یعنی دو قومی نظریے کے جی مطابق. جی لہذا ان کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ انہوں نے ہندوؤں سے کس طریقے سے مقابلہ کیا، اور مختلف تحریکیں جو چلی ہیں، مسلم لیگ نے کیسے کانگریس سے لڑائی لڑی، اور ان کی مخالفتوں کے باوجود انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا. تو اس لیے پوری تاریخ کا جو ہمارے ہاں مرکز ہے وہ مطلب کہ اینٹی انڈین ہے اور ٹو نیشن تھیوری ہے. اچھا، اس کی وجہ سے مطلب کہ کلونیل پیریڈ کا مطلب کہ پورے ہندوستان کی تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن خود پاکستان کے علاقے میں کلونیل پیریڈ کا کیا اثر ہوا،
इसका भी ज़िक्र हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसकी भी कुछ वजूहात हैं। पंजाब में इसकी एक वजह जो है, सबसे बड़ी ये है कि पंजाब में जो सर कि आपकी आवाज रुक गई है। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, हेलो? आवाज तो ठीक थी मेरे। आवाज सर नहीं सर बिल्कुल आपकी ठीक आवाज है, रुक गई है। आवाज मेरे पास ठीक है लुत्फ साहब। ठीक है जी ठीक जी, है। मेरे पास भी ठीक है। ओके ओके। सर, मैं जारी रखूँ? जी जी सर जी जी प्लीज सर, प्लीज सर। प्लीज। अच्छा, अच्छा देखिए, पहली वजह तो मैंने आपको बताई कि हमारी तारीख का मरकज़ जो है, वो 2 कौमी नज़रिया और एंटी इंडिया है। इसलिए हमारे मौखिक जितने भी हैं पाकिस्तान के, वो यही तारीख लिख रहे हैं। कॉलोनियल पीरियड की तारीख को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। अच्छा, दूसरी जो अहम वजह है, वो ये है कि पंजाब में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर सिखों की हुकूमत थी, यानी रणजीत सिंह और उसके जानशीन यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। लिहाजा जब 1849 में पंजाब को फ़तह किया गया है, तो यहाँ के मुसलमानों ने एक तरह से अंग्रेज़ों का खैर मक़दम किया है और कि उन्होंने उनको सिखों से निजात दिलाई। अच्छा, फिर अंग्रेज़ों ने भी पंजाब के सूबे को, चूँकि ये आखिरी सूबा था जो अंग्रेज़ों ने फ़तह किया हिंदुस्तान में, तो इस वजह से इन्होंने पंजाब के सूबे को ख़ास तौर से तवज्जो दी। यहाँ पर इनको सहूलतें मुहैया कीं। जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर ये आबपाशी का निज़ाम, कॉलोनियल यानी कॉलोनीज़ जो थीं वो बनाई गईं और इनको यहाँ बहुत सहूलतें मुहैया की गईं। तो दूसरे सूबों के मुकाबले में पंजाब को अंग्रेज़ी दौर के अंदर काफ़ी फ़ायदे हुए। फिर इन्होंने यहाँ पर वजह उसकी जो थी वो ये थी कि 1857 में चूँकि लखनऊ और दिल्ली दोनों शहर तबाह हो गए थे, जो एक तरह से तहज़ीब का मरकज़ थे, तो उन्होंने उसकी जगह लाहौर को शुमाली हिंदुस्तान का तहज़ीबी मरकज़ बनाया। यहाँ पर तालीमी इदारे खोले, यहाँ पब्लिशिंग हाउसेस खोले और यहाँ पर ख़ास तौर से इन्होंने उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए भी इन्होंने बहुत काम किए। और जैसा आपको मालूम है कि जागीरदारों के बेटों के लिए भी यहाँ एचिसन कॉलेज इन्होंने खोला ताकि इनकी भी तालीम और तरबियत हो सके और वो अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ ताउन कर सकें। इसलिए पंजाब में अंग्रेज़ी मुखालफत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अंग्रेज़ी दौर को ये लोग जो हैं बहुत खुशी से याद करते हैं। अच्छा, चूँकि पख्तूनख्वा उस वक़्त तक जैसा आपको मालूम है पंजाब ही का हिस्सा था, लिहाज़ा पख्तूनख्वा के अंदर भी मतलब कि एंटी कॉलोनियल वो नहीं बात आई। ये ज़रूर है कि पठानों की अंग्रेज़ों से बहुत लड़ाइयाँ रही हैं, लेकिन उन लड़ाइयों की एक पूरी तफ़सीलें तफ़ासिल जो है मतलब कि वो पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। अच्छा, बलूचिस्तान का तो सूबा उस वक़्त था ही नहीं, लिहाज़ा बलूचिस्तान का भी ज़िक्र नहीं। ये 2 सूबे जो हैं बड़े अहम थे, यानी पंजाब का सूबा और सिंध का सूबा। इन 2 सूबों के अंदर मतलब कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के तरीक़े जो थे वो मुख्तलिफ थे। अच्छा, अब यानी यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहैसियत मजमूई एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स जो हैं वो नहीं हैं बिल्कुल। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत से हमारे लोग हैं जो कॉलोनियल पीरियड को याद करते हैं, अंग्रेज़ी ज़माने को भी याद करते हैं। उसकी वजह जो है वो ये हुई है कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे यहाँ जो हुक्मरान तबके आए, इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में हुकूमत की, वो उन्होंने हुकूमत करके अवाम को कोई सहूलतें उन्होंने नहीं पहुँचाई। चूँकि कोई सहूलतें नहीं पहुँचाई, तो आहिस्ता-आहिस्ता मतलब कि हमारा निज़ाम हुकूमत जो है वो इतना बिगड़ता चला गया कि लोगों को माज़ी की याद जो है वो आती चली गई कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत इंसाफ़ था, अंग्रेज़ों के ज़माने में कानून की बालादस्ती थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर अमन व अमान था। वो तमाम चीज़ें लोगों को इसलिए याद आईं कि पाकिस्तान बनने के बाद हमने बहुत ही बुरे तरीके से
हमारे नाअहल हुक्मरानों ने यहाँ पर हुकूमत की, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत की यादें लोगों के दिलों में बहुत ताज़ा हो गई। ये तो है थोड़ा-सा बैकग्राउंड। अच्छा, अब उसके बाद जैसा आपका सवाल है कि सिंध में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीकें उठी, लेकिन देखें अंग्रेज़ों ने सिंध को यानी अपने तसल्लुत में लाने के लिए जिस तरीके को इस्तेमाल किया था, वो ये था कि यहाँ के बड़े-बड़े ज़मींदार, जागीरदार और पीर जो हैं, इनको किस तरीके से अपने काबू में रखा जाए। और इनको काबू में रखने के लिए उन्होंने एक निज़ाम तसल्लुत बनाया था कि ये लोग अंग्रेज़ों के वफ़ादार रहें। उनको इससे मतलब नहीं था कि अपने सूबे के साथ वफ़ादार हों, बल्कि ये था कि अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादार रहें। अब उसके लिए ये था कि गवर्नर के दरबार में या कमिश्नर के दरबार में इनकी अपनी नशस्तें हुआ करती थीं, इनको खिताबात भी दिए जाया करते थे, इनके अपने इलाकों में इनको अदालती इख्तियारात भी थे। तो उसकी वजह से ये बड़ा बरात याफ्ता तबका पैदा हो गया था कि जिसने हमेशा अंग्रेज़ों की खिदमत की। हम यहाँ के पीरों ने भी और यहाँ के जागीरदारों ने भी। अब उनमें से हुर मूवमेंट के जो पीर थे शफ़क़तुल्लाह साहब जो थे, इन्होंने इस निज़ाम तसल्लुत की मुखालफत की और इस निज़ाम तसल्लुत की मुखालफत की वजह से अब आपको मालूम है कि पहले उन्हें 8 साल के लिए जेल में रखा गया। उनका ख़्याल था कि ये अगर मुरीदों से दूर रहेंगे, तो शायद इनका अपना असर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जब वो वापस आए हैं, तो पहले से ज़्यादा सियासी तौर पे बाशऊर होके वापस आए हैं और उन्होंने पहले से ज़्यादा अंग्रेज़ी तसल्लुत के खिलाफ जो है, वो जद्दोजहद की है। तो लिहाज़ा जो हुर तहरीक उठी है, इस लिहाज से एक वाहिद तहरीक है कि जिसने कॉलोनियलिज़्म के खिलाफ मतलब कि ये तहरीक उठी। लेकिन यहाँ मेरी कुछ अपनी मतलब के वजूहात हैं कि ये तहरीक जो है, वो क्यों कामयाब नहीं हुई। उसकी वजह जो थी वो ये थी कि एक तो खुद तहरीक में उन्होंने पूरे सिंध के बजाय इस तहरीक को सिर्फ़ अपने तक महदूद रखा है और इसमें दूसरे लोगों को शामिल उन्होंने नहीं किया है। अच्छा, और जैसा आपको मालूम है कि खुद तहरीक के लोग जो हैं, दूसरे मुसलमानों से खाने-पीने में शरीक नहीं होते थे। उसकी वजह से इनमें अलहदगी के रुझानात थे और दूसरे मुसलमान भी इन्हें शक-व-शुबे की निगाह से इनको देखते थे। तीसरी बात जो है वो ये है कि सिबगतुल्लाह साहब ने इनमें मतलब कि अपनी वफ़ादारी का जज़्बा तो पैदा किया, लेकिन कॉलोनियल हुकूमत के खिलाफ जो एक तहरीक होनी चाहिए थी, अब ये तहरीक की या शऊर पैदा करने की 2 किस्में होती हैं। एक तो होती है ज़बानी तौर के ऊपर, कि ज़बानी तौर पे तकारीर के ज़रिए से लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जाए कि गैर मुल्की आके किस तरीके से आपकी हुकूमत को या आपके मुल्क को तबाह कर रहे हैं। और दूसरा ये होता है जो उस ज़माने में यहाँ पर हो गया था कि प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। ये प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए से पम्फलेट होने चाहिए थे, अखबारात होने चाहिए थे, रिसाले। अगरचे ज़ाहिर है कि ख़वानगी की शरह जो थी वो बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रिंटिंग मटीरियल होता, तो ये प्रिंटिंग मटीरियल इस शऊर को पैदा करने में बहुत मदद देता। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हुर तहरीक के बानियों ने अपने आप को दूसरे जो पीर थे सिंध के, उनसे उन्होंने अपने आप को अलग रखा और कोशिश इस बात की थी उन्होंने कि अपनी बरतरी को कायम करें। नतीजा उसका ये था कि इनको जो जनरली एक यानी मदद मिलनी चाहिए थी, वो मदद नहीं मिली। तो ये तो थी वजूहात। अच्छा, अब मेरा जो एक एतराज़ है, वो एतराज़ ये है कि देखें आप लोग चूँकि तहरीक पे काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी जो है वो ये है कि खुद तहरीक के बुनियादी जो माख़ज़ हैं, उनके ऊपर काम करना चाहिए। अब मसलन पीर साहब के ऊपर ये 2 मुकदमे जो चले हैं, इन मुकदमों की तफ़सील पूरी होनी चाहिए
कि इन मुकदमों में क्या इल्ज़ामात लगाए गए थे। और पहले मुकदमे में जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब वकील थे कि उनका मौक़िफ़ जो था वो क्या था। इन मुकदमात की तफ़सील जो है एक तो वो पूरी सामने मतलब कि आनी चाहिए। दूसरी, मुझे मालूम नहीं कि सिंध के आर्काइव्स में इस सिलसिले में कोई मटीरियल है या नहीं, या बॉम्बे के आर्काइव्स में है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने हुर्रों को जो कैंपों में रखा है। सबसे पहले जैसा आपको बताया बॉम्बे में, महाराष्ट्र के करीब गाँव में कैंप में रखा, फिर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी कैंपों में रखा। तो अभी भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिनका बचपन इन कैंपों में गुजरा या पैदा इन कैंपों में हुआ है। इन कैंपों की लाइफ क्या थी, क्या ज़िंदगी थी। क्योंकि अंग्रेज़ों को ये तजर्बा बॉयर्स वार में हुआ था कि जब उन्होंने बॉयर्स को कैंपों में रखा था, तो कैंपों में रखना, कैंपों की ज़िंदगी, वहाँ पर किस तरीके से ये लोग रहे थे, एक अलहदा से मौज़ू है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कि हम जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप की तो बात करते हैं, लेकिन हम हुर कैंप की बात नहीं करते। और ये बात है कि 1953 तक पाकिस्तान बनने के बाद भी यहाँ पर हुर कैंप रहे। मुझे याद है मेरे बचपन में हैदराबाद में ये हुर कैंप होता था। वो कैंप तो नहीं रहा था, लेकिन वो जगह थी जो हुर कैंप के नाम से ही जानी जाती थी। तो कैंपों की ज़िंदगी के बारे में अलहदा से लिखने की ज़रूरत है। और तीसरी बात जो है बड़ी अहम है, वो ये है कि तारीख़ के अगर माख़ज़ हमारे पास अपने पास नहीं होंगे, तो फिर हम तारीख़ को कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। जैसे लेमरिक ने टेररिस्ट नामी किताब लिखी। कहने को तो उसने कहा कि ये मेरा नावल नहीं है, लेकिन ये है उसी का। तो लेमरिक के पेपर्स भी हैं, उनको देखना चाहिए। दूसरे उनके डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए, लेकिन उसके बिटवीन द लाइन्स देखना चाहिए कि क्या कुछ हुआ था। हमें मुझे याद है कि शायद ये 1980 की शुरू की बात है कि जब यहाँ सारा अंसारी, जिन्होंने सूफी सैन ऑन स्टेट पावर लिखी है, तो हम गए थे सांगड़, जहाँ पर पीर साहब के अभी वो मुरीद बाकी थे कि जिन्होंने रेलवे पे फायरिंग की थी और रेलवे लाइनें उखड़ी थी। एक हमारी मुरीद से वहाँ मिलना हुआ था, जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी। मेरा ख्याल से इन मुरीदों की कहानियाँ जो हैं वो भी जमा करनी चाहिए। वो खुद तो नहीं होंगे, लेकिन अगर उनके घरानों में वो कहानियाँ मौजूद हों, तो वो ज़रूर जमा करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़बानी तारीख़ जो है वो मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी होगी हुर मूवमेंट को समझने के लिए। फिर पीर साहब की फांसी के बाद जो लोगों के अंदर अफ़वाहें फैली थीं, और मेरा ख़्याल से लोगों के अंदर कहानियाँ भी थीं, लोगों के अंदर कुछ गीत भी गाए गए होंगे, फ़ोक टेल्स भी होंगी, उनको भी जमा करना चाहिए, ताकि जो मकामी माख़ज़ हैं वो सामने आएँ। इसकी तारीख़ सिर्फ़ अंग्रेज़ी सोर्सेस से नहीं लिखी जाए, बल्कि उसके अंदर मकामी सोर्सेस जो हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें जी मेरे ज़हन में हैं। आपके पास कोई सवालात हों अगर करें, जी सर। मैं ज़रूर जवाब दूँगा। जी बैकग्राउंड के लिए कि हमने इस वक्त जो ये स्टडी ग्रुप सर्कल बनाया है, उसके अलावा भी लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना अपना काम कर रहे हैं। उसमें काम किस नौयत का हुआ है, एक तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की उन लोगों की जो लोग मूवमेंट में किसी न किसी तरह पार्ट थे, या वो ट्रेन की पटरी गिराने में, या वो मार्शल के दौरान थे, या कंसंट्रेशन कैंप्स में थे। और कुछ हम लोगों ने भी वीडियो रिकॉर्डिंग की और ख्वातीन से मिले हैं, उन लोगों से मिले हैं जिनका बचपन 5-6 साल की जिंदगी जो है ना कैंपों में गुजरी है, जो 43 से लेकर 50 तक वो कैंप में गुजारे हैं, उनकी हमने इंटरव्यू रिकॉर्डिंग की है। और ना सिर्फ हमने, बाकी लोगों ने किए हैं। हम जो ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना, ये इसलिए प्लेटफॉर्म बनाया है सूर्य बायोसेट सर्कल का, जिसमें हम जो लोकल लोगों ने काम किया है और जो रिसर्चर भी हैं जो एक अनबायस तरीके की रिसर्च करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो जो जिस तरह रिसर्च की हुई उसको मेन स्ट्रीम में ले आए। वो सारा कुछ जो रिकॉर्डिंग है या जो काम किया वो सिंधी में ज़्यादातर है, उर्दू में, अंग्रेजी में कम है। तो हमारा फोकस है कि मेन स्ट्रीम ले आने के लिए उर्दू अंग्रेजी होना जरूरी है। सो इस तरह कुछ काम किया हुआ है, कुछ हम कर रहे हैं, बाकी लोग भी अच्छा, कर ये रहे हैं। सिंध आर्काइव्स में कुछ है, मटेरियल है कुछ या नहीं है? कुछ मुकदमे की तफसीलात या और कुछ चीज़ें?
جی سر اس میں ہے، اس میں سر آرکائیو جو برٹش لائبریری میں جتنا مٹیریل تھا وہ ابھی پاکستان میں آ چکا ہے بہت سے لوگوں کے پاس سے، اور جو ہاں نیشنل ہاں لائبریری ہے اسلام آباد میں وہاں پہ بھی اویلیبل ہے، اور بہت سے ڈاکیومنٹ بہت سے لوگوں کے پاس ہے۔ 3-4 کتابیں انگریزی میں اس کے اوپر آئی بھی ہیں۔ ایک پروفیسر عمر چند نے جو نیوزی لینڈ میں ہوتے ہیں، پروفیسر جی عمر چند، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ تقریباً 600 پیج کی کتاب ہے، اس میں ایک والیوم اس کا آ گیا ہے اور باقی پروسیس میں ہے، وہ کاپی میں آپ کو بھجوا دوں گا انشاءاللہ۔ اور جی دوسرا جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے نصیر اجاز، ایک جرنلسٹ ہیں کراچی کے، نصیر اجاز، جی انہوں جی نے لکھی ہے ہور کے نام سے، ہور ایز اے فریڈم فائٹر۔ اس میں انہوں نے ریفر وہ آرکائیو ڈاکیومنٹ بھی کیے ہیں اور اورل ہسٹری بھی یہاں کی جو ہے نا اس کو ریفر کیا ہے۔ اور تیسرے ایک آرٹیکل چھپے تھے آفتاب نبی کے، ایک سائے جی سندھ پولیس کے تھے، انہوں نے ڈان میں ایک اپنے ماسٹر کے ریسرچ کے دوران ڈان میں 96 میں آرٹیکل چھپے تھے، وہ ابھی ریسنٹلی میں نے پبلش کرائے ہیں۔ یہ کتاب ڈاکٹر رزاق آپ کو دکھا رہے ہیں، ڈیفائننگ کالونیل اسٹیٹ پاور کے نام سے، وہ ابھی میں نے کمپائل کی ہے اس بک اچھا کتاب۔ سو یہ بھی ایک مین اسٹریم میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سومرو صاحب ہیں، خادم سومرو، فریڈم آف گلوز کے نام سے ایک کتاب انہوں نے پبلش کرائی ہے، وہ خود بھی نیشنل اپنا یو کے گئے تھے، لنڈن میں نیشنل لائبریری جو ہے اس وہاں سے ڈاکیومنٹ نے لیے تھے۔ سو اس طرح کے یہ 3-4 کتابیں جو مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں جو انگریزی زبان میں ہیں۔ اچھا ابھی یہ ظفر جو نے جو ہیں آپ کو معلوم ہوگا نا، جو ایک رسالہ بھی نکالتے تھے، وہ یہ کہتے کہ انہوں نے لیمرک کے پیپرز جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ ایسا ہی تو ہے بالکل۔ اچھا پیپرز تو خیر حاصل کریں، لیکن ان کا جو اسٹڈی جو ہے نا وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنی ہے، چونکہ اس میں ان کا اپنا نقطۂ نظر ہوگا نا، تو بٹوین دا لائنز دیکھنا ہوگا کہ بھائی انگریزوں کا یہ نقطۂ نظر ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، چونکہ جیسا ایک یہ بھی تو ہوا ہے نا کہ انہوں نے ہر تحریک کو روکنے کے لیے سانگڑ کے اور اس علاقے میں یعنی پنجابیوں کو لا کے آباد بھی کرایا تھا، تاکہ ان یا کا ایک طرح سے مقابلہ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ کلونیل پیریڈ کی جو طریقے تھے، مختلف طریقے کلونیل پیریڈ کے، ان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ کلونیل پیریڈ کے یہ طریقے تو تھے، تو اس کے رد عمل کے طور کے اوپر یہاں پر لوگوں نے کیا کیا، یعنی اس کا رد عمل کیا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بات جو ہے نا، جب تک ہم کلونیل پیریڈ کا لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا نہیں کریں گے نا، اس وقت تک ہم نہیں سمجھیں گے۔ پاکستان میں وہ شعور نہیں ہے اب تک، یہاں کلونیل پیریڈ کو اینٹی کلونیل فیلنگز یہاں ہیں ہی نہیں پاکستان میں، یہاں کلونیل پیریڈ کو بڑا شاندار سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی کلونیل پیریڈ کے خلاف تحریکیں بھی چلی ہیں نا، ان تحریکوں کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو جی جی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے جنرلی، کہ ایک اینٹی کلونیل اپروچ جو ہے وہ یہاں پر ڈیولپ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی، تو پاکستان کے نیشنل نیریٹو میں اینٹی کلونیل موومنٹس کو وہ اسپیس نہیں دی گئی، کیونکہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ وہ اینٹی انڈیا کا نیریٹو ڈومیننٹ ہے ہمارے ہاں، تو جس جی طرح آپ نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے، تو یہ پاکستانی نیشن بلڈنگ کا جو پورا نیریٹو ہے، تو یہاں کی جو انڈیجنس موومنٹ ہیں اور تاریخ جیسی بہت بڑی اینٹی، تو وہ پھر پیچھے ہی چلی جاتی ہیں، تو اس میں زیادہ رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز پہ ہی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک بہت چیلنج نہیں ہے، آپ اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں تاریخ تو بہت بڑا چیلنج اس لیے ہے ہمارے ہاں کہ تاریخ کے اوپر جو مناپلی ہے وہ ہماری ریاست کی ہے، اور یہ جو ایگزیکٹلی شروع کے 2-4 مورخ ہیں نا، جیسے اشتیاق حسین قریشی، معین اللہ اور احسن اکرام وغیرہ، ان لوگوں نے ایک فریم سیٹ کر دیا ہے۔ اچھا اب جتنے بھی لوگ ہیں نا اسی کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ روایتی تاریخ جو ہے مسلسل لکھی جا رہی ہے، بار بار دہرائی جا رہی ہے، نصاب کی کتابوں میں بھی یہی تاریخ ہے، اینٹی کلونیلزم کا تو یہاں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں بدقسمتی سے وہاں تو کوئی کام نہیں ہو رہا، لہذا ایگزیکٹلی پرائیویٹ طور کے اوپر جو ہے ظاہر ہے کہ یہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ یعنی یہ ماخذ کو کلک کرنے کے لیے آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جائیں۔ اب مجھے پتہ نہیں مہاراشٹر میں
या बॉम्बे के जो आर्काइव्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी कोई ना कोई मटेरियल होना चाहिए। अब ये चूँकि यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं उनको जमा करने के लिए, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि कोई ना कोई निजी इदारे जो हैं होने चाहिए, वो अब तक हमारे यहाँ नहीं है। तो आपकी बात है तो सही, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि हमें इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद, जैसा इतने अच्छे-अच्छे आप लोग जमा हुए हैं पढ़े-लिखे, मुझे बड़ी खुशी है, आप लोग जमा हुए हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं करें, और कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं से मतलब कोई इमदाद जो है वो भी आती रहती है, मिलती रहती है। और जितना भी हो सके काम मतलब कि करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि एंटी कॉलोनियल जब तक यहाँ पर काम नहीं होगा, तो यहाँ पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स जो हैं, उनकी अहमियत भी नहीं होगी। यानी हुर मूवमेंट के बारे में मेरा जहाँ तक ख़्याल है, हमारी निसाब की किताबों में कोई ज़िक्र नहीं है। अगर ज़िक्र है ज़्यादा से ज़्यादा तो सियासत में ज़िक्र आ जाता है हुर तहरीक का, यानी मौजूदा पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन जो यानी अभी जो हुरों ने अब की पूरी तारीख है इब्तिदा से लेके अब तक, उसका पूरा ज़िक्र जो है वो कहीं भी हमें पूरे तफसील के साथ नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये तारीख लिखते हुए ये ज़रूर ख़्याल रखें कि तारीख के अंदर मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस नहीं बनाया जाए, किसी को इतना ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाए बिल्कुल। कि फिर उसका फ़ायदा गलत तरीके से उठाया जा सके। तारीख़ की हकीकत जो है वो सामने आनी चाहिए कि पीर शफ़क़तुल्लाह ने मतलब कि अंग्रेज़ी कॉलोनियलिज़्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद उन्होंने की थी, और इस जद्दोजहद में उन्होंने अपनी जान दी है। इसका ज़िक्र ज़रूर आना चाहिए, और इसको ज़रूर लोगों के सामने लाना चाहिए कि ऐसी और भी जो तहरीकें हैं, चाहे वो छोटी-मोटी तहरीकें क्यों ना हों, उनको ज़रूर सामने लाया जाए। जी। डॉक्टर साहब इस हवाले से मेरे ख्याल है मैं एक डॉक्टर साहब जी, एक सवाल है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बातें तो काफ़ी मोटिवेटिंग भी हैं, और हमारी कोशिश भी इस प्लेटफॉर्म पे मकसद भी यही है कि जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं वो अपनी हिस्ट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पेश करें। मिसाल के तौर पे जैसे आपने फरमाया कि हमारे यहाँ जो हिस्ट्री प्रेजेंट हुई है रिटन फॉर्म में, या तो वो वेस्टर्न की तरफ से हुई है या वो इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं उनकी तरफ से हुई है, मगर हमारे जो अपने हिस्टोरियंस हैं जो नेशनल लेवल के हैं और जो साउथ एशिया के हिसाब से बहुत बड़ा नाम रखते हैं, जैसे आप हैं, आयशा जलाल साहिबा हैं, इश्तियाक हुसैन साहब हैं, और नबी बख्श बलोच साहब हैं। नबी बख्श बलोच ने तो कुछ काम किया है, मगर क्योंकि जब हम इस वक्त इस हिस्टोरिकल फेज में खड़े हुए हैं तो हम एक नमूने से ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हमारे नेशनल हिस्टोरियंस हैं जिन पे हम सब फख्र कर रहे हैं, डॉक्टर मुबारक से लेकर आयशा जलाल तक, और उनके किताबों में हमें इस मूवमेंट के बारे में, ख़ास तौर पे हुर मूवमेंट के बारे में बहुत ही कम पता चलता है। एक तो बिल्कुल। वजह ये भी मालूम करनी थी आपसे कि क्योंकि आपने बहुत काफ़ी बुक्स लिखे हैं और मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल जंक्शंस हैं उनको काफ़ी आपने एक माया नाज और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है रिसर्च उनके मुताबिक आपने कंट्रीब्यूट किया है, मगर हुर तहरीक पे बहुत ही कम मिल रहा है। क्या जो हमारे नेशनल हिस्टोरियंस हैं जिनका बड़ा नाम है, जिनकी किताबें जब हम ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी कर रहा था तो वहाँ पर भी रेफ़र की जा रही थी, डॉक्टर आयशा आप खुसूसन, तो वो क्यों नहीं इन हमारे जो नेशनल हिस्टोरियंस हैं, एक तो उन्होंने इस पे काम इतना क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल ये है कि सर जो हुर मूवमेंट है इन इटसेल्फ, क्या आप उसको उस लेवल पे समझते हैं कि हुर मूवमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिजिनस मूवमेंट जिसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है जो डोमिनेंट पावर था ब्रिटिश का उस वक्त? कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे हिस्टोरियंस या जो प्रीवेलिंग सोशल साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को इतना समझते नहीं कि ये कोई ऐसी मूवमेंट है जिसने जो ब्रिटिश पावर है उसको थ्रेट किया और उसको टफ टाइम दिया, और जो हिस्ट्री है उसको उन्होंने एक दूसरे टर्न पे ले गए। मेरा ये दो मुख्तसर सवाल थे सर आपसे। नहीं, आपका बिल्कुल, बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैंने हुर मूवमेंट पे कोई काम नहीं किया। उसकी अब कई वजूहात हो सकती हैं। मतलब कि एक तो ये होता है कि ना कोई मटेरियल की कमी भी
میں سامنے رہی، میٹیریل بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے میری اپنی بڑی خواہش جو تھی وہ یہ تھی کہ بامبے آرکائیوز کا جتنا میٹیریل سندھ کے اوپر ہے وہ یہاں لایا جائے، تو وہ نہیں لایا جا سکا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے آرکائیوز اور یہ جو دوسرے ادارے ہیں یہ پورے طریقے سے تعاون آپ کے ساتھ نہیں کرتے، تو کبھی کبھی وہ ایک مایوسی بھی ان لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو میں اپنی غلطی بالکل مانتا ہوں کہ مجھے کام کرنا چاہیے تھا، جہاں میں نے سندھ کی تاریخ پہ اور کام کیا ہے وہاں حر تحریک کے اوپر بھی کام کی ضرورت تھی بالکل۔ لیکن بہرحال اب مجھے خوشی ہے کہ میں نے نہیں کیا تو چلیں، اب آپ نوجوان ہیں، اب ہم ناری عمر تو گزر گئی، آپ نوجوان ہیں، نیا جوش ہے، آپ اس کے اوپر کام کریں۔ تو ایک چیز جو ہے وہ بالکل یعنی بات صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ میں اس پورے عرصے میں بالکل اکیلا ہی رہا، میرے ساتھ یعنی کوئی اسسٹنٹ بھی نہیں تھے، کوئی ہمارے پاس ایسے طالب علم بھی نہیں تھے کہ جن کو شوق ہوتا کوئی مدد کرتے، تو ایک اکیلے آدمی کے لیے بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ تمام موضوعات کو دیکھے۔ حالانکہ کافی اچھی سندھولوجی کی لائبریری کافی اچھی ہے، سندھ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں بھی کافی اچھا ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ ایک لحاظ سے سمجھیے کہ میری غلطی بھی ہے کہ مجھے کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر سکا۔ اچھا، دوسرے مالک جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے تو بڑے چانسز ہیں نا، کہ انڈیا آفس لائبریری جی ہے، برٹش میوزیم بھی ہے، اور وہاں رہتے ہوئے میٹیریل کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو تو خیر چاہیے تھا کام کریں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر موومنٹ کی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن ان کی اس کمزوری کو بھی آپ سامنے لے کے آئیں تاکہ دوسری موومنٹ جو ہے وہ بھی سیکھ سکیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہر موومنٹ نے کالونیل تسلط کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کی، اور وہ جد و جہد خالی جد و جہد ہی نہیں کی ہے بلکہ اس کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں۔ تو بالکل یہ ذکر جو ہے اس تحریک کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو ضرور اجاگر کرنا چاہیے۔ اور جیسا آپ نے کہا ہے، اس بات کی خوشی ہے کہ زبانی تاریخ جو ہے وہ بھی جمع کرنی چاہیے، تاکہ اس تحریک کے علاوہ بھی جو اور تحریکیں سندھ کے اندر اٹھی ہیں ان تحریکوں کو بھی آہستہ آہستہ سامنے لایا جائے۔ رائٹ، سوال آپ لطف بھائی پوچھنا رفیق چاہیں گے یا رفیق میں رفیق پوچھ؟ رفیق ہاں اور ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو اس جواب سے پہلے جو ایک آپ نے بات فرمائی، تو میں اسی سوال کو دہرانا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہر تحریک جیسی انڈیجنس موومنٹس کو اور باقی صوبوں میں بھی انڈیجنس موومنٹس کو پاکستان بننے کے بعد اس طرح سے سیریس نہیں لیا گیا یا ان کو اون نہیں کیا گیا، تو ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اس کی ایک بہت بڑا پولیٹیکل اس کی وجہ یا اس کا پولیٹیکل ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو پورا نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے اس میں انڈیجنس موومنٹس کو لینا پاکستانی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بہت ایک نیشن بلڈنگ کا کرائسس تھا کہ اس کو کس طرح انٹیگریٹ کیا جائے، اور پھر بنگال میں نیشنل موومنٹ کا چلنا، پھر سندھ میں یہ 1 یونٹ کے بعد نیشنل سینٹیمنٹس کا ابھرنا، ایتھنو نیشنلزم، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں لگ رہا کہ پاکستانی ریاست کا جو نیشن بلڈنگ کا اس کی یہ ایک مجبوری تھی کہ یہ اگر تو وہ انڈیجنس موومنٹس کو اون کرتا ہے تو شاید وہ جو اس کا نیشن بلڈنگ کا نیریٹو ہے اسلام بیسڈ اور ون نیشن بلڈنگ کا، وہ متاثر ہو رہا تھا، تو اس لیے بھی انڈیجنس موومنٹس کو انہوں نے اون نہیں کیا۔ اس کو کیسے آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے اس سوال اور کو سر بہت آپ اچھی کیسے ہے۔ سمجھیں؟ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا وہ پورے طریقے سے جس علاقے میں پاکستان بنا تھا اس کی تاریخ کو وہ پورے طریقے سے نہیں سمجھ پائے تھے۔ لیکن اب پاکستان تو بن گیا 47 میں، لیکن پاکستان کے یہ صوبے جو تھے بنگال سمیت، یہ تو مطلب کہ ہزاروں برس کی تاریخ بھی رکھتے تھے، ان کی اپنی زبان بھی تھی، اپنا کلچر بھی تھا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ہی رات میں یا ایک ہی دن میں آپ کہیں کہ بھئی آپ
ये सारे सूबाई तासुबात हैं, यानी अपनी तारीख को याद रखना या अपनी ज़बान को याद रखना या अपने कल्चर के बारे में आदमी को एहसास होना, आप ये सब ख़त्म कर दें, तो ये मुमकिन नहीं था। लेकिन इनकी कोशिश ये थी कि जल्दी में, मतलब कि ये जो इलाक़ाई कल्चर हैं, इलाक़ाई तारीख़ें हैं, इलाक़ाई शनाख्तें हैं, इन सब को ख़त्म कर दिया जाए। तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं था, वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जब रियासत की तरफ से ऊपर से तारीख़ नाज़िल हुई और कौम परस्ती रियासत की तरफ से उस पर ज़ोर दिया गया, तो उसका रद्द-ए-अमल दूसरा ही हुआ। लोगों के अंदर फिर अपनी शनाख्त ज़्यादा से ज़्यादा उभरी। और तीसरी जो बड़ी अहम बात है मेरे ख़्याल से, वो ये है कि हमारे हुक्मरानों ने इब्तिदा ही से, मतलब कि अवाम के बजाय हुक्मरान तबकों की वेलफेयर की तरफ तवज्जो दी है और उसकी वजह से अवाम जो है वो महरूम रहे हैं। अवाम में ये महरूमी की शिद्दत जो है वो बढ़ती गई। हुक्मरान तबकों को तो मराहत मिलती रहीं, वो तो खुश होते रहे। नतीजा उसका ये है कि बजाय इसके कि कौम परस्ती पैदा होती और उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल हुआ, मज़हब जो है वो पाकिस्तान को मुत्तहिद नहीं रख सका और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और हम देख रहे हैं कि आज भी मज़हब जो है वो पाकिस्तान को मुत्तहिद नहीं रख रहा है। पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने वाली चीज़ जो है वो पाकिस्तान की कदीम तारीख़ है। मैं समझता हूँ कि आप इस वक़्त का जो पाकिस्तान है, इसकी बुनियाद हम इंडस वैली सिविलाइज़ेशन को रखें कि वो हमारी बुनियाद है। हमारी बुनियाद ये नहीं है कि अरब सिंध में आए थे और हम अपनी तारीख़ को सिंध के रास्ते से मशरिक़ी वस्ता के अंदर ले जाएँ, तो वो हमारी तारीख़ तो नहीं रहेगी। हमारी तारीख़ तो वादी सिंध से शुरू होती है, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से हम इसकी बुनियादें बनाएँ। और अब आजकल के हुक्मरान तबकों के लिए जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि अब तक की जो गलतियाँ की गई हैं माज़ी के अंदर, अपनी उन गलतियों को तस्लीम करें और पाकिस्तान की तश्कील जो है अब नए सिरे से होनी चाहिए। अब पुरानी बुनियादें, पुरानी रिवायात जो हैं वो फरसुदा हो चुकी हैं। अगर हमें इस मुल्क को बरकरार रखना है, तो इस मुल्क को नई बुनियादों के ऊपर हमें बनाना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है हम जैसा देख रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब कि टुकड़े-टुकड़े होकर, मतलब कि ख़त्म हो रहा है। राइट। लुत्फ़ आया कोई सवाल? लुत्फ़ और डॉक्टर रज़ाक साहब, आप जी। थैंक यू। मेरे ख्याल में हमें बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव मिल गया डॉक्टर साहब से। 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग आज के इस डिस्कशन से आई हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में एंटी कॉलोनियल अप्रोच जो है ना वो डेवलप नहीं हुई। हम एंटी हिंदू और इस तरह से हम देखते रहे। ये बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग थिंग है जो हम को देखनी पड़ेगी। सो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डॉक्टर साहब, और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, और काफ़ी नॉलेज शेयरिंग हुई। और हम इस वक्त सूर्य बचा स्टडी सर्कल की तरफ से ये कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, कुछ इस मीटिंग में नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं। उन सब की तरफ से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया, और हम आइंदा भी आपसे सीखते रहेंगे, आपको ज़हमत देते रहेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ी आपको तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं, बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलें कुछ आप नौजवान हैं, आप में जोश भी है, कुछ काम करना चाहते हैं, ज़रूर करें। क्योंकि देखें तारीख़ जो है एक बहुत अहम टूल है, जो कौम के अंदर अपनी शनाख्त को भी पैदा करता है, उसमें एहसास भी पैदा करता है, अहमियत भी पैदा करता है और अपने आप को बदलने का जज़्बा भी पैदा करता है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि आप लोग मौजूद हैं, ज़रूर राब्ता रखें और कभी आप में से कोई भी लाहौर आए तो ज़रूर मिलिए, और मेरा कभी हैदराबाद आना हुआ तो आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया यू डॉक्टर बहुत साहब। शुक्रिया थैंक यू डॉक्टर वेरी साहब। मच। थैंक यू सो थैंक मच यू थैंक यू डॉक्टर वेरी मच। साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।